Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all hale and hearty over there at your homes and you are getting along with your studies. And with these wishes, hope the greeting will find you in good spirit and health. So, reiterating my request once again that you should always carry on with your studies wherever you are, whatever you are doing, or whatever you are, in whichever situation you are. So we have successfully dealt with your comprehension part A and B of the gift. The gift is chapter number 10, page number 113 of your book. Here the first question from comprehension part C has been dealt with or done away with already in our previous class. Now the second question you have been asked is, how does Anna feel once she gets to Nana Mary's house and climbs the stairs? Now the question is in simple present. You have been already taught how to make questions in simple present tense. If you are supposed to make a question in simple present tense, you are supposed to use the helping verb does with third person singular, and we are talking about, you and me are talking about Anna, who is the third person singular. So how does Anna feel? And you are not supposed to use any s or es with the first form of the verb. You are supposed to use first form of the verb with the helping verbs whenever, be it do, does or did. So how does Anna feel once she gets, once एक बार जब क्या हुआ, she gets. Now it's in a positive sentence, so she third person, get plus s. She gets to Nana Mary's house and climbs, and she gets to Nana Mary's house and climbs. वो पहुंच जाती है और चढ़ना शुरू कर देती है the stairs. तो उसको कैसा महसूस हुआ था? Support your answer with examples from the text. Now you have been given a statement, an imperative sentence after the question, in which you have been asked to support your answer from the text you have just read about Nana Mary and Anna. So the question would be like this. Anna was quite excited to share her gift at first. When she arrived there, she was really feeling very happy to share her gift with Nana Mary. The way she keeps knocking at the door tells us that she really wanted to share her gift with Nana Mary. How do you know that she was so excited to share it? So the answer is the way she keeps knocking. It means the door was already closed when she arrived at Nana Mary's house, but she kept knocking at the door, and this action of her, that the knocking, tells us. Okay, knocking at the door tells us. Knocking third person singular है, ये एक gerund. तो tells us, ये हमें बता रहा है कि that she really wanted to share. वो असल में क्या करना चाहती थी? शेयर करना चाहती थी हर गिफ्ट, अपने गिफ्ट को विद नैना मैरी. और आपको बोला कि सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट लो. तो आपकी किताब में कहाँ पे लिखा है? शी रेप्ट होता है नॉकिंग करना. वंस अगेन, सॉफ्टली ऑन द डोर. पहले तो उसने टॉक किया था, आराम से किया था, आपको पता है. देयर वाज नो आंसर, वहां पे कोई जवाब नहीं आया था. शी नॉक्ड अगेन, दोबारा उसने नॉक्ड किया था. लाउडर, इस बार क्या किया था? थोड़ा जोर से. टू पुट हर हैंड, देन है यहाँ पे, सॉरी, पुट हर हैंड ऑन द नॉब, डोर नॉब, सॉरी. उसके बाद उसने क्या किया था? दरवाजे के नॉब पे जो कुंडी होता है, जहाँ पे हैंडल होता है, उस पर हाथ लगाकर उसको खोला था. तो इस तरह से हमें पता चला. उसके बाद क्या हुआ? बट एज शी क्लाइम्ड अप द स्टेप्स, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, शी सॉ दैट द लाइट्स हैड बीन टर्न्ड ऑफ. तो लाइट्स जो है उसने देखा, क्या देखा? दैट लाइट्स हैड बीन टर्न्ड ऑफ, कि लाइट्स को तो बंद कर दिया गया हुआ है. एज इफ द पीपल, जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, द पीपल इन द हाउस वेयर गेटिंग रेडी फॉर बेड, कि वो जो घर में लोग हैं वो सब किस चीज के लिए? सोने के लिए तैयार हो रहे हैं. शी ऑल्सो सॉ दैट नैना मैरीज बेडरूम डोर वॉज शट, और उसने ये भी नोटिस किया कि नैना मैरी के जो बेडरूम डोर है और वो क्या है? बंद है. तो अब आगे देखो, द लैंडिंग एट द टॉप, ये टेक्स्ट में से आपको सपोर्ट किया है. कैसे पता चला? द लैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स वाज डार्क, जो लैंडिंग था यानी सीढ़ियों के ऊपर जो
हल्का सा प्लेटफॉर्म होता है वो क्या था, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। एंड द डोर टू नैना मेरीज रूम वॉज क्लोज्ड, और उसका जो नैना मेरी के कमरे की तरफ जो दरवाज़ा जाता था वो बंद था। एट दिस पॉइंट एना बिगिन, ये जो ग्रीन ब्लू के साथ लिखा है वो सब आपको आंसर है, बाकी जो है सपोर्ट के लिए आपको टेक्स्ट दिया है। तो एट दिस पॉइंट इस पे क्या हो, इस मरहले पर एना बिगिन टू वंडर, एना बिगिन टू वंडर मीन्स एना विश टू नो, वो जानना चाहती थी, ठीक है, इफ इट वॉज ए गुड आइडिया, ठीक है, वंडर हैरत को भी कहते हैं यहाँ पे वो जानना चाहती थी, अपने आप से पता पूछ रही थी। इफ इट वॉज ए गुड आइडिया टू ट्राई एंड गिफ्ट द वेरी डे, ठीक है, कि क्या पूछ रही थी कि क्या ये एक अच्छा ख्याल था कि क्या करें, कोशिश करें, टू ट्राई एंड गिफ्ट द वेरी डे, और उसी दिन को जो उसने देखा था उसको एज ए गिफ्ट दे दें। शी बिगेन टू हेजिटेट, अब वो थोड़ा सा क्या होना शुरू हो जाती थी, वहां पे हो गया, हाँ, हिचकिचाना शुरू हो गया। एंड डिड नॉट गो इन, वो नहीं गई अंदर। एनाज हैंड हेजिटेटेड एट द डोर नॉब, ये आपको टेक्स्ट में से सपोर्ट के लिए दिया। दस फाइनली, आखिर में क्या हुआ, आखिरकार, इसलिए आखिरकार आफ्टर सम थॉट, कुछ सोचने के बाद, शी डिसाइडेड टू डू इट अब एनी वे, चाहे जो भी हो जाए, उसने डिसाइड कर लिया कि वो करेगी, उसने सोच कर लिया, जो भी हो उसने डिसाइड कर लिया कि चलो जो भी होता है होने दो, हम करेंगे। देन शी ओपन द डोर एंड शट इट बिहाइंड हर, उसके बाद वो अंदर गई और दरवाजे को बंद कर दिया अपने पीछे, ठीक है। होप यू हैव गॉट इट, ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. And the last question you have been asked here is describe the setting at the end of the story. Now you have been once again given an imperative sentence and you are supposed to describe what was the end of the story. Setting of the setting of the end, at the end of the story means how it is how it has been narrated to you or how it has been written at the end. How does it bring, अब देखो थर्ड पर्सन है तो फिर से क्वेश्चन है, हाउ डज इट ब्रिंग आउट द वार्मथ, वार्मथ यहाँ पे गर्माहट है, मोहब्बत जो इसको कहते हैं, ठीक है, दिल में सोच, दर्द जो है, हमदर्दी जो है। ब्रिंग आउट द वार्मथ ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन एना एंड नैना मेरी, इन दोनों के बीच में जो मोहब्बत थी, दोस्ती थी, उसको कैसे बाहर लाता है। तो द आंसर वुड बी हियर, नैना मेरी वॉज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर विथ वन हैंड, ठीक है, वो अपने चेयर में बैठी हुई थी और विथ वन हैंड, एक हाथ से क्या किया था, शी हेल्ड ऑन टू एनास, तो यानी उसने अपने एक हाथ से एना के हाथ को पकड़ा हुआ था। विद द अदर, दूसरे के साथ, शी पॉइंटेड टूवर्ड्स ए स्टूल, स्टूल जो कुर्सी होता है जिसके 4 टांगे होती है ना, सिर्फ उसके साइड से कुर्सी की तरह नहीं होता है, बस स्टूल होता है, तो उसकी तरफ इशारा किया। पुल इट राइट अप हियर एना, और एना से कहा कि उसको यहाँ खींच के लाओ। शी सेड, उसने कहा, ये उसने कहा अब जब वो वहां पे पहुंची थी। आखिरी सेटिंग ऐसा था ना, क्योंकि सेटिंग के बारे में बोला कि वो क्या कर रही थी, बैठी हुई थी और उसने वहां पे एना के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने स्टूल की तरफ इशारा करके कहा कि उसको यहाँ खींच के लाओ एना। शी सेड, फिर क्या हुआ, एना पुल्ड अप नैना मेरीज हैंड्स इनटू हर लेप। अब एना क्या करती है, नैना मेरी बहुत बुजुर्ग है ना, तो अपने हाथों, उसके हाथों को अपने गोद में लाती है एंड held it with both of her arm, और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ती है। as she described everything she had, जैसे वो डिस्क्राइब कर रही थी, ठीक है, when she described it, जब उसने डिस्क्राइब किया, everything, हर चीज, she had, जो उसने क्या किया था, seen that day, उस दिन देखा था। the two friends sat together, अब वो दोनों दोस्त आपस में मिलकर बैठते हैं, क्या करते हैं, holding hands इन द क्वाइट रूम, उस खामोश रूम में एक दूसरे के हाथों को पकड़कर बैठे हुए हैं और स्टोरी सुना रहे हैं। द ओनली लाइट इन द रूम इज ए फेंट ग्लो, अब कमरे में जो हल्का सा रोशनी है, फेंट मतलब चक्कर खा के गिरने को भी कहते हैं, यहाँ पे वीक के सेंस में है, क्योंकि ग्लो को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। ए फेंट ग्लो, एक हल्का सा ग्लो, रोशनी थी। प्रोबेबली फ्रॉम ए लैम्प, मे बी फ्रॉम ए लैम्प, शायद किसी लैम्प से वो रोशनी थी। दिस सेट्स अप ए वेरी कोजी एटमोसफियर, कोजी मतलब फ्रेंडली, बहुत ही दोस्ताना माहौल को बना रही थी इस चीज की वजह से। एन ए फीलिंग एज दो, और एक ऐसा एहसास दिला रहा है जैसे कि, एज दो मतलब फिर वही जैसे कि, द फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी, वो दोनों दोस्त जो है दोनों बहुत खुश हैं, जस्ट बीइंग विद ईच अदर, की वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। दिस ऑल्सो शोज अस हाउ मच अफेक्शन दे हैव फॉर ईच अदर, और ये हमें ये भी दिखाता है कि ये एक दूसरे से कितने शफकत मोहब्बत रखते हैं, ठीक है, दे हैव फॉर ईच अदर, एंड हाउ हैप्पी दे आर, वो कितने खुश हैं, टू स्पेंड टाइम इन ईच अदर्स कंपनी, यानी एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने के लिए ये दोनों कितने खुश हैं इसको करते हुए। सो होप यू हैव गॉट इट। विद दिस वी हैव फिनिश्ड डीलिंग विद योर comprehension part A, B and C, and in D part you have been asked to think and answer
this is not to be supposed this is not supposed to be written in your book. Rather you need to understand what actually is given over here. यहाँ पे क्या दिया यही समझना है आपको, ठीक है. तो इसलिए how would you describe the relationship between Anna and Naina Mary? तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक ये है और आई थिंक इन आंसर में. दूसरा आपको नो योर वैल्यूज़ है. वैल्यूज़ आपको आपके जो अखलाक़ी उसूल होते हैं, अक़दार होते हैं, उसको अक़दार बोलते हैं, वो आपको क्या करने जानना है. द स्टोरी इज़ अबाउट ए ट्रू फ्रेंडशिप. अब ये स्टोरी एक सच्ची दोस्ती के बारे में था. व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ए फ्रेंडशिप? आपको क्या लगता है दोस्ती में क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? फिल द वर्ड्स वेब बिलो. अब वर्ड का वेब बनाया इसने, ठीक है. फ्रेंडशिप है तो सिंसियरिटी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ठीक है. अब इन दोनों में आप कुछ और बरो सोच के बढ़ लेना. अब यहाँ पे ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स, अब ट्रू फ्रेंडशिप थर्ड पर्सन सिंगुलर होना, सच्ची दोस्ती एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं. मीन्स मतलब है सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना ड्यूरिंग गुड टाइम्स इन द बैड, चाहे अच्छा सा टाइम हो या बुरा टाइम हो, एक दूसरे के सपोर्ट करना. इट मीन्स, अब देखो फिर से थर्ड पर्सन, इसका मतलब है बीइंग लॉयल, वफादार होना. देखो सपोर्टिव इसने खुद दिया हुआ है, सपोर्टिव आप ये भी लिख सकते हो इसमें. तो सपोर्टिव होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना. रेस्पेक्टफुल होना, एक दूसरे की इज्जत करना. फ्रेंड्स, ठीक है, ये होता है. फ्रेंडशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट द हैप्पी टाइम्स यू हैव टुगेदर. फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं है कि आप जो आपके खुशियों के टाइम थे सिर्फ उसी से रिलेटेड हो, तो वो मतलब नहीं है. तो बाकी वी हैव ऑल्सो सक्सेसफुली डेल्ट विथ योर ग्रामर पार्ट. Now here you have been left with the vocabulary and writing parts. For the time being, keep it till here. We will continue it in our next class. Till then, take care, goodbye, and carry on with your studies. Hope you all the best. Hope you are all getting along with your studies. Wish you all the best. Khuda Hafiz.